आज की जो शीर्षक मैंने चुना है कि परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन बनने दो। So today's title which I've chosen is Let God's Word be the guidance to your life. ये सिर्फ एक प्रचार करने के लिए इस शीर्षक को मैं नहीं चुना। This is not a title just for preaching. जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कई सालों से, उसी को मैं आज उस शीर्षक के रूप में चुना गया है। What I'm experiencing in my life, this is what I'm trying to preach today. आपको पता है बाइबल में सबसे बड़ी अध्याय कौन सी है? जवानों को एक सवाल करना चाहता हूँ। So I want to ask the young people, do you know which is the longest chapter in the Bible? कोई जवान का है? Does anyone know? Okay, children. Children, सबसे बड़ा which is the longest chapter in the Bible? David? Right, okay. So भजन संहिता 119. So it is Psalms 119. So उसमें से एक वचन मैं बांटना चाहता हूँ। So from that I want to share a verse. इस भजन को किसने लिखा है उसका नाम नहीं लिखा गया है। The person who's written this psalm is not mentioned. सबसे ज़्यादा भजन डेविड ने लिखा था। The most number of psalms are written by David. कुछ भजन कोरा लिखा था। Some psalms were written by Korah. और कुछ भजन आसाफ लिखा था। And some were written by Asaph. कुछ सोलोमन और कुछ मोसेस। Some by Solomon, some by Moses. So सबसे ज़्यादा जो लिखा है डेविड था। So most of the psalms were written by David. लेकिन इस अध्याय को किसने लिखा है उसका नाम नहीं बताया गया है। But who has written this chapter is not mentioned. जरूरी नहीं है हमें। And it's not even important. लेकिन जरूरी ये है कि उसने हमसे क्या बात किया। What is important is what has he spoken in it. So भजन संहिता 119 और 105 का अध्याय वचन हम पढ़ेंगे। So Psalm 119 verse 105. Anyone can read? 119 और वचन 105। है। यहाँ पर ये जो भजनकार कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। So here the psalmist says that your word is a lamp to my feet. और मेरी रास्तों के लिए एक प्रकाशन है। And a light to my path. जैसे इस रूम में मैं इस शुरुआत में आया था। So just as when I entered this room. और अभी हम चारों तरफ लाइट्स देख रहे हैं। We can see lights all around us. लेकिन जब इस कमरे में मैं अंदर आया था। But when I entered this room. बहुत सारा डार्कनेस था यहाँ पर। There was a lot of darkness in this room. मैं सोचा इस डार्कनेस को कैसे भगाएंगे। So I was thinking how to get rid of this darkness. तो मैं इधर जाके इसको हाथ से ऐसा करूँ, हाथ से ऐसा करूँ, कुछ भी करूँ तो उस डार्कनेस नहीं चलेगी। So I cannot hush it away with my hands. But मुझे पता है कि यहाँ पर एक स्विच बटन दिया गया है। But I know there's a switch over here. मैं जाकर उसको सिर्फ ऑन करूँगा। And when I switch it on, तुरंत उस अंधियारा चले जाएगा। The darkness goes away. So इस भजनकार हमें प्रोत्साहन करता है। So over here the psalmist encourages us. तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। That your word is a lamp to my feet. और मेरे रास्तों के लिए प्रकाशन है। And a light to my path. So ये वचन मुझसे कई हफ्तों से बात कर रहा था मुझे। So this verse was speaking to my heart since some weeks. दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। And I want to share two examples. एक महीने पहले एक अविश्वासी भाई ने मुझे एक मैसेज डाला था। So a month back an unbeliever brother messaged me. वो मैसेज ऐसा था कि भाई आप बहुत अच्छा इंसान हो। And the message said that you are a very good human being. एक अविश्वासी भाई And this is an unbeliever brother. मुझे तारीफ कर रहा था। He was appreciating me. आप एक अच्छा इंसान हो। That you are a good human being. मैं आपको उसका रीजन बताना चाहता हूँ। And the reason is क्योंकि वो मुझे कर्जदार था। Because he was indebted to me. मैंने माफ करने लगा उनको। And because I was forgiving his debt. एक बार नहीं है, दो बार नहीं है, तीन बार नहीं है। Not just once but twice and thrice. बहुत बार उनको माफ करने लगा। And I let go of his debt many times. और जब मैं उसको माफ करने लगा मेरा तारीफ बढ़ने लगा। And the more I was forgiving him, the more he was appreciating me. और जिस दिन उसने कहा कि मैं तेरा कर्जा चुका दूंगा। And the day he said that I will pay off your debts. उस दिन मैंने याद रखा। That day I remembered. उसको कहा। And I said to him. आप कितने बार मेरा नहीं चुकाया। There are so many times that you did not pay तो me. उसने कहा कि मैं बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। And he said that he was going through a lot of difficult time.
मैं उनको आश्वासन दे रहा था प्रभु के वचन के द्वारा। And I was assuring him through God's word. वो बोल रहा था कि मेरा परिवार में बहुत तकलीफ है, And he was saying that he was facing a lot of मेरे बच्चों के जीवन में बहुत तकलीफ difficulties. है। His children were facing तो difficulties. मैं उसको आश्वासन दे रहा था प्रभु के वचन के द्वारा, हम सबके जीवन में तकलीफ होती है, आर्थिक परिस्थिति होती है, बीमारी होती है, सारी तकलीफ होती है। So I was assuring him that in our lives there are a lot of health and financial and other difficulties. तो इस तरह से उसको प्रोत्साहन भी कर रहा था और एक तरफ उनको क्षमा भी कर रहा था, उसकी कर्ज देने के लिए मैं क्षमा भी कर रहा था। So on one hand I was assuring him also, and I was also forgiving his debts also. तो इसलिए वो मेरा तारीफ कर रहा था। And that is why he was appreciating me. कल्पना करोगे, जिस दिन उसने मुझे कर्ज नहीं चुकाऊंगा उस दिन मैं बोलूंगा कि मैं छोड़ूंगा ही नहीं तुमको, वो मुझे तारीफ नहीं करता था। And just imagine if I hadn't let go of his debts, he would not have appreciated सो me. मैं ये वचन को प्रभु के सामने लेकर गया, And so I took this before the Lord, प्रभु को पूछा, and I asked the Lord प्रभु मैं आपको तारीफ करूंगा, that Lord, I will appreciate you मेरी कितने लाखों करोड़ों पाप आपने मुझे माफ कर दिया है। because so many lakhs and crores of sins you मैं have ब्रदर्स एंड forgiven. सिस्टर, आप और मेरा तारीफ का योग्य यीशु मसीह है। Brothers and sisters, Jesus Christ is worthy of our praises. आपका लाखों करोड़ों पापों को उसने क्षमा कर दिया है, Our lakhs and lakhs of sins he has forgiven कोई सीमा ना रखते हुए। without any limit. जैसे कि इस आदमी को मैंने क्षमा किया, मेरा तारीफ करने लगा। Just as when I forgive this person, he was appreciating सो me. उसी तरह हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद का दिल रखना चाहिए कि वो हमारे कितना पापों को, गुनाहों को माफ कर दिया है। So we should have such a thankful heart towards God because he has forgiven us so much. तो प्रभु भला है। And because God is good. तो हमेशा जब कभी अविश्वासी या विश्वासी जब मेरे जीवन में कुछ वचन डालते हैं So whenever a believer or an unbeliever brings a word to my life, और उस वचन के द्वारा मैं शायद फूल सकता हूँ, and if through that word if I can become full of pride, जैसे कि उसने कहा कि आप अच्छा इंसान हो, just like that person said you are a good और human वो being. वचन सुन के मुझे इतना फूलने लगा अंदर से। And when I heard that, I was so full of pride within myself. लेकिन जब मुझे प्रभु का वचन नहीं मालूम रहेगा, But if I don't know God's मैं word, हमेशा फूलते रहूंगा। I will continue to grow in तो pride. जब उसने वो वचन कहा, So when he said that word, उस वचन को प्रभु के वचन के सामने लाया। so I brought it before the Lord. प्रभु का वचन में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है, सबने परमेश्वर की महिमा से गिर गया है। And रोमियो God's का word किताब में said, and God's word said that nobody is righteous, everyone is unrighteous. सो इस व्यक्ति ने कहा आप अच्छा इंसान हो, This person said you are a good human being. और उस वचन को लेकर प्रभु के वचन के सामने रखा मैंने। And I brought this word before God's word. प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी निष्पाप नहीं है, सब ने पाप किया। And God's word said that nobody is good, nobody is sinless, and nobody is righteous. अगर मैं Everybody is. उस वचन को नहीं जानता था, If I hadn't known that verse, परमेश्वर वो वचन मेरे दिल में अगर नहीं रखता था, if God had not put that word in me, उस इंसान के वचन को लेकर मैं फूल जाता था और भी। I would have been full of pride with because of what that person said to me. So, मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, जब कभी कोई भी भाई आपको जीवन में कुछ वचन डालते हो, So brothers and sisters, I want to encourage you, whenever someone says anything to you, प्रभु के वचन के सामने लेकर जाओ। bring it before the Lord. आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर है। You will know where you are standing. सो मुझे फूलने का अवसर नहीं मिला वहाँ पर। So I did not get any opportunity मुझे to boast. उसने मुझे तो तारीफ तो किया, He did appreciate me क्योंकि उसने बहुत सारी खर्च को मैंने माफ कर दिया। because I had forgiven his debts, इसके कारण वो मुझे फैलने का मौका मिला। and sorry, इसके कारण and because of that, मुझे अंदर से फूलने के लिए एक मौका मिला था। and because of that, I got an opportunity to be full of pride. लेकिन जब मैं प्रभु का वचन के सामने लेकर गया, But when I brought it before the Lord, मुझे लगा कि मेरा हालत क्या है। I recognized what was my situation. कई बार कोई अविश्वासी लोग मुझे श्रापित करते हैं। And many times unbelievers cursed me. एक बार एक स्त्री ने मुझसे कहा, Once upon a time, a woman, she said to me, जो वेजिटेरियन को ज़्यादा पसंद करती है, who likes vegetarians more. तो एक बार मैं नॉन वेज पसंद करता हूँ करके कहा उससे। So I said that I like non-vegetarian उस food. औरत ने कहा, क्यों आप उन मुर्गियों को मार कर पाप कर रहे हैं? And so she said to me, why are you committing crime by killing chickens? उनको भी जीने दो ना, You should let them live also. पेड़ पौधों को क्यों काट के खा रहे हो, उनको भी जीने दो। Why are you cutting the trees? Let them also live. मुझे पता है कि परमेश्वर ने क्या खाने के लिए दिया है, क्या नहीं खाने के लिए दिया है, प्रभु का वचन में लिखा है। So I know what God has allowed us to eat and not allowed us to eat. It is written in तो God's उस स्त्री word. ने मुझे नीचे गिराने के लिए कोशिश किया। So this woman just tried to humiliate me by मुझे that. वो मुझ पर दोष लगाने लगा।
And she was trying to condemn me by तुम that. पाप कर रहे हो, ये खाते पीते काट के पीट के जानवर को मारते समय आप पाप कर रहे हो। That you are committing sin by killing animals and doing all लेकिन this. मुझे पता है कि जिन्होंने परमेश्वर ने निष्पाप बनाया उसके ऊपर दोष कौन लगा सकता है? But I know that whom God has purified, no one can blame such a person. किसने परमेश्वर ने निष्पाप बनाया? So किसको? whom has God set righteous? आप यहाँ बैठा हुआ सभी लोगों को परमेश्वर ने निर्दोष बनाया। You and everyone sitting over here, God has made that person righteous. 2000 साल पहले जब यीशु क्रूस पर मरा था 2000 years before when Jesus died on the cross, और उस क्रूस पर जो लटका हुआ था सिर्फ यीशु मसीह नहीं था। and the one who was hanging on the cross was not just Jesus, सो आप और मैं उस क्रूस पर लटका हुआ था। it was you and I on the cross. तो जब इस स्त्री ने मुझसे कहा आप पाप क्यों करते हो, इन सभी चीजों को मार कर खाते हो, पाप करते हो, So when this woman said that you're killing all these animals and you're committing sin by that, और ये वचन मुझे नीचे गिराने की जैसे लगा था, and this word was as if to put me down, अजय मुझे निंदा करने वाली जैसा वचन लग रहा था, it was as if to humiliate me. और मैं तुरंत उस वचन को प्रभु के वचन के सामने लेके गया। So I immediately brought this word before the Lord. प्रभु के वचन में एक वचन में लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर ने निर्दोष बनाया उनको दोषी कौन ठहरा सकता है? So God's word says that the one whom God has made righteous, who can make them unrighteous? My brothers and sisters, हमेशा वचन को वचन के साथ तुलना करा। ब्रदर जैक हमेशा कहता है कि वचन को वचन के साथ हमेशा क्या करे? तुलना करे। So Brother Zach always says that compare scripture with scripture. यदि कोई आपको आशीष का वचन देते हो, So if you take a word of blessing, प्रभु का वचन के सामने लेकर जाओ। take it before the Lord. यदि कोई श्राप का वचन भी देते हो, If someone gives a word of curse तुलना also, करो प्रभु के वचन के साथ, compare it with God's word. क्योंकि प्रभु का वचन हमारे लिए क्या है? Because what is God's word to us? एक दीपक की जैसा है It is a lamp और हमारी मार्गों के लिए एक प्रकाशन है। and it is a light to our path. और ये जो भजनकार इसलिए लिखा है And that is why the psalmist और says, परमेश्वर की इस वचन का तारीफ करते हुए लिखा है, and he's saying that as a word of praise, मैंने परमेश्वर का वचन का तारीफ करने लगा। that he is praising God for it. याद रखो, एक व्यक्ति को आप कब तारीफ करते हो? So when do you praise a person? हो सके वो 1000 कर्ज को माफ कर दे आपका, Probably he has forgiven a lot of your debts, हो सके आपको ऊंचा उठाया है, and he's saying good things about you, भले आपको बहुत कुछ आपको दिया होगा, and he has given a lot of things to भले you, आपको निरुत्साह में ऊंचा उठाया होगा, and he has praised you a lot, तब तो एक व्यक्ति को आप तारीफ करते हो, and that is when you praise a person. राइट? तो यहाँ पर भजनकार उस प्रभु का तारीफ करने लगा। So over here, the psalmist praises God. सो यहाँ पर लिखा है 119 और वर्स 8 कोई पढ़ेंगे शुरुआत 119 वर्स 8। Psalm 119 verse 8. मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे तेरी पूरी रीति से न तज। सो यहाँ पर क्या लिखा है कि मुझे छोड़ो मत परमेश्वर। So over here he says, I shall keep your statutes, do not forsake me utterly. सो मैं तेरी विधियों को आज्ञाओं को पालन करूंगा लेकिन आप मुझे छोड़ो मत। So he says that I will keep your statutes, but do not forsake me. इसका मतलब ये है कि This means that. सो इस जो भजनकार ये इस तरह से लिख रहा था, So what the psalmist is trying to say here, इसके पहले वो परमेश्वर के रास्ते से हट चुका था। he had probably gone astray from God's word. तो before. परमेश्वर से इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु आप अगर मुझे छोड़ दिया मैं वापस पिछले जीवन में जा पाऊंगा। So what he's trying to say is that God, if you forsake me, I will go back to my old ways. धन्यवाद कि आपकी अनुग्रह के कारण, कृपा के कारण मैं आज आपकी संगति में हूँ। And thank God that because of His mercy and grace, he is in fellowship with God today. धन्यवाद कि आपके महान प्रेम के कारण तेरी संगति में हूँ। And thank God that because of His love, he is in fellowship with God. लेकिन आप मुझे छोड़ो मत। But do not forsake me. जिस दिन आप मुझे छोड़ेंगे मैं शायद वापस वो पाप में जा पाऊंगा। And the day God leaves him, he might probably go back to his old ways. इसलिए मैं तेरी आज्ञाओं को मैं पालन करूंगा, मुझे छोड़ो मत। And that is why I will keep your statutes. Do not forsake me. तो वो परमेश्वर से विनती करने लगा। So that's why he was pleading with God. तो मैं ब्रदर्स से आप और मेरी प्रार्थना यही होना चाहिए कि हम पाप से नहीं लड़ना नहीं चाहता है तो परमेश्वर से ये विनती करना है कि प्रभु आप मेरा हाथ मत छोड़ो। So brothers and sisters, if we want to fight with sin, we have to ask God that He should not leave His hand. और एक वचन लिखा है कि भजन संहिता 119 और वर्स 9 में लिखा है कि सारी जवानों के लिए,
And another verse, verse 9, is for all the young सारे people. जवान लोग ध्यान दो यहाँ पर। All young people pay attention. सो एक जवान भाई कैसे आपका चाल चलन को शुद्ध रखेगा? 119:9। So how can a young man keep his way pure? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? सो ये सारे जवान लोग एक प्रश्न करने के लिए एक लायक का प्रश्न यहाँ पर है। So this question is for all the young people over here. सो सारे जवान लोग को मैं पूछना चाहता हूँ, आप ये सवाल कर सकते हो इसको? So I want to ask this question to all the young people sitting over हमारे here. चाल चलन को कैसे शुद्ध रखेंगे? How can you keep your ways pure? उसकी उत्तर कहाँ पर है? And where is the answer? उधर नीचे लिखा है। It's right there below. तेरे वचन का पालन करने से, तेरा वचन का पालन करने से जवान अपना चाल चलन को कैसे रखेंगे? शुद्ध रखेंगे। By keeping it according to your word. And this is how you young people can keep your ways pure. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको सिर्फ वचन सुनने से या आपके हृदय में रखने से या सिर्फ प्रचार करने से आपका चाल चलन शुद्ध नहीं होगा। So just by listening to the word and keeping it in your heart is not, or even by preaching it, your ways will not become pure. बाइबल कहते हैं कि वचन सुनने से विश्वास आएगा, The Bible says that faith comes by hearing the word. लेकिन आपका चाल चलन शुद्ध रखना है। But if you want to keep your ways pure, सिर्फ उनको सुनना ही नहीं है, हमारे हृदय में रखना ही नहीं है, उनको अभ्यास में रखना है, अभ्यास करना है। you just don't have to listen to it and keep it in your heart, but you have to practice it. तो सारे जवान यहाँ बैठे उन सभी को मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन को अभ्यास करने से आपका चाल चलन कैसे रहेगा? So all the young people sitting over here, I want to encourage all of you that when you do God's word, what will happen? इसको अभ्यास करना है। That you have to be a doer of the word. कई बार कुछ लोग पूछते हैं जब मैं गांव जाते समय, आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते हो? So when I go to my native place, some people ask me that why don't you sit with us? जहाँ लोग टट्टा करते हैं बैठकर, Where people sit and एक gossip दूसरे के मजाक उड़ाते हैं, and make fun of each वो other. लोग कभी कभी पूछते आप हमारे साथ क्यों नहीं बैठते हो? So these people sometimes ask me, why don't you sit with us? तब मैं इस वचन को भजन संहिता एक में कंपेयर करना चाहता हूँ। So at that point of time, I compare this with Psalm 1. वहाँ पर क्या लिखा है? What does it say over there? मैं उस जगह पे खड़ा नहीं रहना चाहता हूँ, बैठना नहीं चाहता हूँ और उनकी चाल चलन की युक्ति पर नहीं चलना चाहता हूँ, क्योंकि ये लिखा है भजन संहिता 1:1 में लिखा है। So because it says in Psalm 1:1 that I don't want to sit in any place where there are scoffers. मैं किसके साथ बैठना चाहता हूँ? So with whom do I want to sit? मैं उनके साथ बैठना चाहता हूँ जिन्होंने परमेश्वर ने निर्दोष बनाया और जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए इच्छा रखा है, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य पीछे दौड़ने के लिए इच्छा रखी, उनके साथ मैं संगति में रखना चाहता हूँ। So with whom do I want to sit? I want to sit with those who have been made righteous. I want to sit with those who want to have fellowship with God and walk with God. इसलिए मैं उनके साथ बैठने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ। And that's why I don't want to sit with those other people. I don't have a desire to sit with them. भले वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे, No matter what they think about me. भले मैं नाला सोपारा में रहूं, मेरा सोसाइटी के लिए कुछ भी चाहे, यहाँ पर आप क्यों नहीं आते हो, यहाँ पर क्यों नहीं बैठते हो, क्योंकि मुझे पता है कि भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है। So even in my society in Nala Sopara, even over there I don't go and sit, and I will not do that because I know what it says in Psalm 1. इसका मतलब ये नहीं कि उन सारी लोगों को मैं घृणा कर रहा हूँ। That doesn't mean that I'm condemning or judging all those other नहीं, मैं people. घृणा नहीं कर रहा हूँ। I am not judging them. जब वो तकलीफ में रहेगा मैं जाकर जरूर मदद करूंगा, When they are in trouble, I will definitely go and help लेकिन them. परमेश्वर का वचन को मैं उधर हल्का सा नहीं लेना चाहता हूँ। But I do not want to take God's word lightly. मैं उनकी जगह पे नहीं बैठूंगा, I will not sit amongst them. लेकिन उनसे प्रेम करूंगा। But I will still love them. आपको पता है एक पापी को और एक पापियों को टुकड़ाना का अर्थ क्या है? And do you know what does it mean that when you एक पापी को और जो सिन को, जो पाप को और पापियों को टुकड़ाने का मतलब क्या है? So do you know what does it mean that when you have to break sin and sinners? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया है पापियों के लिए। So Jesus Christ, the Son of God, came for sinners. उनको नाश करने नहीं आया है। He did not come to destroy them. एक व्यक्ति ने एक बार इस तरह से प्रार्थना किया, So a person once prayed, वो प्रार्थना मैं आज भी याद रखता हूँ। and I still remember that वो prayer. प्रार्थना ऐसा था, And it was such a प्रभु way. ये जो व्यक्ति जो पाप कर रहे हैं, इसको और इसकी पाप को ये बांध कर बाहर फेंकता हूँ। And the person prayed in such a way that that Lord, this person and the sin that he is doing, I bind it and I throw it away. और उस व्यक्ति को और इस व्यक्ति को पाप को दोनों को मैं बांध कर क्या करता हूँ, फिर बाहर फेंकता हूँ। And this person and the sin that he has committed, both I bind it and I throw it away. वो पापी को क्यों फेंकना है? Why do you want to throw away the sinner? उसकी पाप को फेंक देना।
that his sin should be thrown हमें away. हमें हमसे पाप से छुटकारा चाहिए हमें. We want to be freed from our हम sins. हमको पाप से मुक्ति पाना है. We want to be freed from our sins. लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह आया है. And Jesus has come for us. यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन है. हमारी पाप को प्रभु से दूर हम रखने के लिए इच्छा रखेंगे. And it's an encouragement for everyone sitting over here that we want to keep all our sins away. लेकिन हमको नहीं फेंकना है हमको. But we should not be thrown away क्योंकि प्रभु anywhere. यीशु को ऐसा पापी ही चाहिए था. Because Jesus has come for sinners. लेकिन प्रभु ये पाप से नफरत करता है, लेकिन पापियों से क्या करते हैं? प्रेम करता है. Because Jesus loves sinners, but he hates sin. तो हमेशा इस वचन को वचन के द्वारा तुलना करें. So always compare scripture with scripture. आखिरी में एक वचन बताना चाहता हूँ. And another verse that I want to speak जब on. कभी आप हाईवे पे 4 व्हीलर चलाते हो, So whenever you're driving a four-wheeler on the highway बाइक चलाते हो, or a bike, आपको पता चलता है कि जहाँ पर मोड़ है, जहाँ पर टर्निंग है, so you come to know that whenever there's a turning, वहाँ पर उससे पहले एक बोर्ड लिखा रहता है. there's always a signboard before क्या that. बोर्ड है वहाँ पर? What does it say? आगे टर्निंग है. That there is a turning ahead. यहाँ पर आपकी गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए. And that your vehicle speed should be around 20 to 30 kilometers. क्यों लिखा रहता है? Why is it written over there? और कौन लिखा है वो? And who writes it? जिन्होंने आपके साथ कोई साझा नहीं है, कोई संगति नहीं है, वो व्यक्ति ने आपके लिए लिखा है. So the person who has nothing to do with you, not known to you, he such जानते a हैं वो person has व्यक्ति written it. आप और आपका परिवार का भलाई चाहता है. Because he wants the good for you and your family. भले आप उस आज्ञा को अनाज्ञाकारी नहीं करेंगे, And although you may not obey it, अगर आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे उस आज्ञा को, so whatever is written, if you don't obey शायद it, आपको दुर्घटना हो सकता है. you may end up in an accident. लेकिन अगर उस आज्ञा पालन करेंगे, But if you do obey it, शायद आप और आपका परिवार का भलाई होगा. probably you and your family will benefit from it. लेकिन जिसने उस बोर्ड पे लिखा है वो व्यक्ति आप और कोई संबंध नहीं है. But the person who has written that on the board has no relation with you. लेकिन वो व्यक्ति चाहता है आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे. But that person wants that you and your family are always protected. उस आज्ञा का आप उल्लंघन करेंगे, सिर्फ आपका शरीर का नाश होएगा. So if you disobey that, it is only your body which will be affected. परमेश्वर के जीवित वचन को उल्लंघन करेंगे हम लोग. But if you हमारी disobey आत्मा God's और word, प्राण शरीर सब नाश होने वाला है. Your spirit, body, mind, everything will be destroyed. तो कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमारे लिए एक जीवित वचन रखा है. So it's in such an amazing way God has kept this living word for माय us. ब्रदर्स, परमेश्वर आपसे इतना प्रेम किया है. God loves us so much. आपको क्या क्या नहीं दिया है. What all has He not given you? आप विश्वासहीनता है. And you were मैं unfaithful. विश्वासहीनता हूँ. I was unfaithful. मुझे विश्वास दिलाया. But He gave us faith. वो प्रेम, हम प्रेमहीनता है, हमको प्रेम दिलाया. We were unloving, but He loved us. वो हम पवित्र आत्मा पाने के लायक नहीं थे, आप और मुझे पवित्र आत्मा दिया. We did not deserve the Holy Spirit, but He gave us the Holy Spirit. आप इस बाइबल करने के लिए शायद 200 या 300 खर्च किया होगा. Probably you bought the Bible for 200-300 rupees. लेकिन इसमें जो वचन दिया है वो आपके लिए एक जीवन की मार्ग है. But the words that are given in this word, they are a light to your path. सो हमेशा वचन को वचन के साथ तुलना करें. So always compare scripture with मैं scripture. ब्रदर्स, आप कभी जीवन में निरुत्साह नहीं होगा. You will never be discouraged in भले life. आपके पत्नी आपको निरुत्साह किया होगा, Even if your wife discourages भले आपका you, पति आपको निरुत्साह किया होगा, if your husband discourages आपका you, परिवार के लोग आपको गिराया होगा, and your family discourages लेकिन you, प्रभु का वचन आपके पावों के लिए मार्ग है, आपके रास्तों के लिए प्रकाशन है. but God's word is a light to your feet. जब कभी इस वचन में जाती हो, So whenever you go into the word, प्रभु आपको आशा देगा. God will give you hope. Praise the Lord. Praise God.